Today we are going to discuss about the motion in the rectangular potential barrier. So we have the barrier. This is a barrier. Here from in this barrier we can divide into three regions. First region, second region and third region. So in first region the potential is 0. In second region the potential is equal to V naught, and in third region the potential is equal to 0. And the boundaries are at x equal to 0 and at x equal to a. At x equal to 0 the first boundary, and the x equal to a there is a second boundary. तो x equal to 0 पर ये स्टेप पोटेंशियल होता है और यहाँ पर भी x equal to a पर भी स्टेप पोटेंशियल अब यहाँ पर अप है और यहाँ पर ये डाउन होता है. तो Vx equal to 0 for x less than 0, Vx equal to 0, V naught for x greater than 0 and less than a, and Vx equal to 0 for x greater than a. Now the potential barrier is in between x equal to 0 and x equal to a. Now if a particle having the energy is less than V naught, इससे कम है हमारे पास, यानी कि इतनी एनर्जी है, तो क्लासिकली द पार्टिकल विल ऑलवेज बी रिफ्लेक्टेड. ये ऑलवेज रिफ्लेक्टेड हो जाएगा क्लासिकली, लेकिन एंड हेंस विल नॉट पेनिट्रेट, इसको इस बैरियर को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा. बट हाउएवर इन अकॉर्डिंग टू द वेव मैकेनिक्स, इफ वेव मैकेनिक्स को कंसीडर करें तो दैट प्रेडिक्ट्स that this the particle has some probability of penetrating this barrier, that is in the first region to second region. If the particle is moving from left to right, that is from first to second, then it will penetrate the second region. And if E greater than V naught, अगर ये अब जो है हम कंसीडर करें कि E की वैल्यू जो है यहाँ पर है, E greater than V naught, the classical mechanics predicts that the particle will always be transmit. ये transmit हो जाएगा, चला जाएगा, है ना. While according to the wave mechanics, the particle has finite probability of transmission. According to the wave mechanics, ये finite probability है transmission की, and hence not certain the particle will penetrate the barrier. है ना, ये इसको बैरियर को पेनिट्रेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा अकॉर्डिंग टू द वेव मैकेनिक्स. नाउ दिस ऑल्सो पेनिट्रेशन इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल एज वेल एज द बैरियर. If barrier and the potential is small, then the penetration can be possible. So the Schrodinger equation, now we have to find out according to the Schrodinger equation how much the reflection of the energy if E is greater than V naught or if E less than V naught. ठीक है, कितना इसका इंसिडेंट वेव का ये ट्रांसमिशन होगा, कितना इसका रिफ्लेक्शन होगा, और कितना ये फिर सेकंड रीजन से ये पेनिट्रेट करके बाहर ट्रांसमिट हो जाएगा, पेनिट्रेट करके बाहर आ जाएगा इन थर्ड रीजन में, और कितना फिर यहाँ पर ये इसमें भी कुछ पोर्शन हो सकता है कि रिफ्लेक्ट कर जाए इन सेकंड रीजन. तो ये थर्ड रीजन में रिफ्लेक्शन नहीं है, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो इन्फिनिटी से कोई रिफ्लेक्शन होता ही नहीं ट्रांसमिशन का. तो द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द फर्स्ट रीजन it can be written as del 2 psi 1 upon del x square plus del m upon h cross square is psi 1 equal to 0. यहाँ पर हमने वेव फंक्शन माना, हमने कितना psi 1 माना, और यहाँ पर v नॉट 0 हो गया, v की वैल्यू 0 हो गई तो ये 2m ही आएगा खाली. यहाँ पर सेकंड रीजन में v की वैल्यू v नॉट हो गई तो फंक्शन का हमारे पास ये फंक्शन यहाँ पर भी माना हमने psi 2, तो ये del 2 psi 2 upon del x square plus 2m upon h cross square e minus v नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा. नाउ इन थर्ड रीजन में ये आ गया, तो ये जो है वेव जो है ऐसे चली जाएगी और ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी. तो इसमें जो वेव फंक्शन हमने माना वो psi 3 माना, तो ये हमारे पास वेव फंक्शन इसमें हमने माना psi 1, इसमें माना psi 2 और इसमें माना हमने psi 3. तो del 2 psi 3 upon del x square plus 2m upon h square e psi 3 equal to 0. Psi 1, psi 2, psi 3 are the wave function in first, second and third region respectively. The general solution of second, third and fourth can be written as, है ना, ये रिटर्न कर सकते हैं हम psi 1 इक्वल टू a1 e raised to power i p1 x upon h cross plus b1 e raised to power minus i p1 x upon h cross. Psi 2 इक्वल टू a2 e raised to power i p2 x over h cross plus b2 e raised to power minus i p2 x over h cross. Psi 3 इक्वल टू a3 e raised to power i p1 x upon h cross plus b3 e raised to power minus i p1 x upon h cross. इसमें P1 और इसमें भी P1 है. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो P की वैल्यू है वो अंडर रूट 2m ही है इसमें भी, और अंडर रूट 2m ही इसमें भी है मोमेंटम की वैल्यू.
इसमें जो P2 माना, क्योंकि इसमें जो मोमेंटम की वैल्यू है वो अंडर रूट 2m e माइनस वी नॉट हो जाएगी। तो ये P1 इक्वल टू दिस, यानी कि इसमें भी P1 और इसमें भी P1, यानी कि अगर P3 लिखते तो P1 इक्वल टू P3 हो जाता। तो P1 इसमें दोनों में अंडर रूट 2m के बराबर और P2 इक्वल टू अंडर रूट 2m e माइनस वी नॉट हो जाएगा। तो ये आप अंडरस्टैंड करके कि इसमें जो है P3 हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें भी वैल्यू अंडर रूट 2m है और इसमें भी वैल्यू अंडर रूट 2m है मोमेंटम की। नाउ A1 A2 A1 A2 A3 B1 B2 B3 जो है हमारे पास वो क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, और जिनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाउंड्री कंडीशंस में। इन द थर्ड रीजन the wave is transmitted and from infinity the wave will not reflect back in the negative direction। ये हमने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन लिया है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की तरफ लिया है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ तो ट्रायल करेगा, लेकिन नेगेटिव एक्सिस की तरफ इन्फिनिटी से कोई भी रिफ्लेक्शन हमारे पास नहीं आएगा इन थर्ड रीजन में। तो हमारे पास B3 क्या हो जाएगा, 0। तो इक्वेशन जो सेवंथ है वो क्या बन जाएगी हमारे पास, ψ3 इक्वल टू A3 e raised to power I P1 x अपॉन h क्रॉस। नाउ हमें A1 A2 A3 B1 B2 ये कांस्टेंट रह गए हमारे पास, तो इनको हमें निकालना है। तो हम बाउंड्री कंडीशन से इनको निकालेंगे। तो बाउंड्री कंडीशंस कहाँ पे अप्लाई होगी, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a पर। शाई क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, वेव फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस होना चाहिए बाउंड्रीज। तो ψ1 at x इक्वल टू 0 इक्वल टू ψ2 at x इक्वल टू 0 एंड ψ2 at x इक्वल टू a इक्वल टू ψ3 at x इक्वल टू a। Also, the differential of the wave function del psi over del x must be continuous at the boundaries. So, del psi 1 over del x at x equal to 0 equal to del psi 2 over del x at x equal to 0 होना चाहिए। Similarly, del psi 2 over del x at x equal to a should be equal to del psi 3 over del x at x equal to a। तो ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस, 4 बाउंड्री कंडीशंस आ गई। अब इनको हम लगाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 5th 6th एंड 7 में हम बाउंड्री कंडीशंस रख देंगे। तो ये A1 e raised to power 0 प्लस B1 e raised to power 0 इक्वल टू A2 e raised to power 0 प्लस B2 e raised to power 0 आ जाएगा। इसका मतलब A1 प्लस B1 इक्वल टू A2 B2 A2 प्लस B2 आ जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5th 6th एंड 12th ये हम एट एक्स इक्वल टू A पर बाउंड्री कंडीशन ले लेंगे। तो A2 e raised to power I P2 A और H क्रॉस प्लस B2 e raised to power माइनस I P2 A और H क्रॉस इक्वल टू A3 e raised to power I P1 A और H क्रॉस आ जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप, दो इक्वेशन आ गई। अब डिफ्रेंशिएट करो किसको, हमारे पास जो इक्वेशन है हमारे पास ये वाली 5th 6th एंड 7th, ये 5th 6th एंड 10th को हम जो है डिफ्रेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये डेल ψ1 और डेल x इक्वल टू I P1 और H क्रॉस A1 इन ब्रैकेट A1 e raised to power I P2 x ओवर H क्रॉस माइनस B1 e raised to power माइनस I P1 x ओवर H क्रॉस आ जाएगा। डेल ψ2 और डेल x आ जाएगा I P2 और H क्रॉस इन ब्रैकेट A2 I P2 x ओवर H क्रॉस माइनस B2 e raised to power माइनस I P2 x ओवर H क्रॉस, और डेल ψ3 और डेल x आ जाएगा I P1 डिवाइड बाय H क्रॉस A3 e raised to power I P1 x ओवर H क्रॉस। अब ये बाउंड्री कंडीशंस हम लगाएंगे 13 और 14 जो हमारे पास है, ये वाली कंडीशंस जो है बाउंड्री ये लगाएंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो है 13 वाली लगाएं। तो डेल ψ1 और डेल x इक्वल टू 0 इक्वल टू डेल ψ2 और डेल x इक्वल टू 0 है। तो IP1 हमारे पास कॉमन आ जाएगा IP1 और H क्रॉस A1 e raised to power 0 माइनस B1 e raised to power 0 इक्वल टू IP2 और H क्रॉस A2 e raised to power 0 माइनस B2 e raised to power 0, यानी कि x इक्वल टू 0 किस में रखा हमने, इसमें भी और इसमें भी हमने रखा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो A1 माइनस B1 इक्वल टू P2 अपॉन P1 A2 माइनस B2। सिमिलरली डेल ψ2 और डेल x जो है एट एक्स इक्वल टू a शुड बी इक्वल टू डेल ψ3 और डेल x एट एक्स इक्वल टू a। तो ये लगा दीजिए आप इसमें, और इसमें x की वैल्यू क्या रख दें a और बराबर रख दीजिए। तो ये IP2 और H क्रॉस A2 e raised to power IP2 A और H क्रॉस माइनस B2 e raised to power माइनस IP2 A और H क्रॉस इक्वल टू IP1 और H क्रॉस A3 e raised to power IP1 A और H क्रॉस आ जाएगा, और A2 e raised to power IP2 A और H क्रॉस माइनस B2 e raised to power माइनस IP2 A और H क्रॉस इक्वल टू P1 अपॉन B2 A3 e raised to power IP1 A और H क्रॉस आ जाएगा। अब जो दो इक्वेशन 15 एंड 20 आई हमारे पास, 15 है और ये 20 है, इनको ऐड कर दीजिए। तो हमारे पास A1 की वैल्यू आ जाएगी, A1 आ जाएगा A2 बाई 2 1 प्लस P2 अपॉन P1 मतलब प्लस B2 बाई 2 1 माइनस P2 अपॉन P1, और इन दोनों के इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो B1 की वैल्यू आ जाएगी, और B1 हमारे पास हो जाएगा A2 बाई 2 1 माइनस P2 अपॉन P1 इन ब्रैकेट प्लस B2 बाई 2 1 प्लस P2 अपॉन P1। ये हमारे पास A1 और B1 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें A2 और B2 दोनों में A2 B2 है, तो इसका मतलब हमें A2 और B2
बी निकालना पड़ेगा और उसकी वैल्यू अगर तब जब निकल जाएगी तो इसमें इक्वेशन में 22 एंड 23 में रख देंगे। तो नाउ ऐड इक्वेशन 16 एंड 21, ये इक्वेशन ये वाली है और 21 हमारे पास ये वाली है, इन दोनों को ऐड कर दें। तो ऐड करने से ये जो टर्म है b2 वाली टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगी हमारे पास। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्वाइस a2 e रेज़ टू पावर i p2 a ओवर h क्रॉस इक्वल टू a3 e रेज़ टू पावर i p1 a ओवर h क्रॉस 1 प्लस p1 अपॉन p2 आ जाएगा हमारे पास। तो ये a2 की वैल्यू आ जाएगी a3/2 1 प्लस p1 अपॉन p2 e रेज़ टू पावर i p1 माइनस p2 a ओवर h क्रॉस। इसको हम इधर ले गए क्वांटिटी को, ये माइनस में बन जाएगा। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर दें इन इक्वेशन को दोनों को, तो हमारे पास b2 की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ a3, b2 आ जाएगा a3/2 1 माइनस p1 अपॉन p2 e रेज़ टू पावर i p1 प्लस p2 a ओवर h क्रॉस। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है 22, ये जो इक्वेशन है 22 और ये 24 और 25, इसमें a2 और b2 की वैल्यू यहाँ से किस में रख दें, 22 में रख दें। तो ये इक्वेशन हमारे पास a1 इक्वल टू आ जाएगा a3/4 1 प्लस p1 अपॉन p2 e रेज़ टू पावर i p1 माइनस p2 a ओवर h क्रॉस 1 प्लस p2 अपॉन p1 प्लस a3/4 1 माइनस p1 अपॉन p2 e रेज़ टू पावर i p1 प्लस p2 a ओवर h क्रॉस 1 माइनस p2 अपॉन p1। तो a1 जो है हमारे पास क्या हो जाएगा a3/4 e रेज़ टू पावर i p1 a ओवर h क्रॉस क्या आ जाएगा कॉमन, तो इन ब्रैकेट आ जाएगा 1 प्लस p1 अपॉन p2 1 प्लस p2 अपॉन p1 e रेज़ टू पावर माइनस i p2 a ओवर h क्रॉस प्लस 1 माइनस p1 अपॉन p2 1 माइनस p2 अपॉन p1 e रेज़ टू पावर i p2 a ओवर h क्रॉस। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 23, ये हमारे पास इक्वेशन 23 है और 24 25 से a2 और b2 की वैल्यू किस में रख दें, 23 में रख दें, तो हमारे पास b1 भी आ जाएगा। तो b1 क्या आएगा हमारे पास a3/4 1 माइनस p2 अपॉन p1 1 प्लस p1 अपॉन p2 है ना। ये हमने a2 की वैल्यू कहाँ से निकाली, यहाँ से निकाल के इसमें रख दिया। तो 1 माइनस p2 अपॉन p1 तो पहले ही था, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो a3/4 बन गया। तो e रेज़ टू पावर माइनस क्या आ जाएगा i p1 माइनस p2 है ना, ये आ जाएगा a ओवर h क्रॉस और ये फिर a3/4 जो है b2 की वैल्यू रख दीजिए। तो a3/4 1 माइनस p1 अपॉन p2 1 प्लस p2 अपॉन p1 e रेज़ टू पावर i p1 प्लस p2 ये आ जाएगा a ओवर h क्रॉस। तो ये हमारे पास a3/4 e रेज़ टू पावर i p1 a ओवर h क्रॉस क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो ये हम कॉमन ले लें, तो इन ब्रैकेट आ जाएगा 1 प्लस p1 अपॉन p2 1 माइनस p2 अपॉन p1 e रेज़ टू पावर माइनस i p2 a ओवर h क्रॉस डिवाइड प्लस 1 प्लस p2 अपॉन p1 इन ब्रैकेट 1 माइनस p1 अपॉन p2 e रेज़ टू पावर i p2 a ओवर h क्रॉस। तो ये इक्वेशन हमारे पास 27 हो गई। तो हमारे पास जो है ये हमारे पास पार्ट 1 था, इसमें आगे इसमें पार्ट 2 में ये पार्ट 1 हम ले लेंगे, दिस इज द पार्ट 1। इन पार्ट 2 अगेन इसके आगे हम सॉल्यूशन इसका करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे इसमें, हम इसमें अभी जो है वो a3/a1 की वैल्यू निकालेंगे, a3/a1 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे और तो उससे हम आगे सॉल्यूशन निकालेंगे। थैंक यू।